Good morning, students. This is Shashi Verma, your English teacher, and I hope you are all well at your home. And today we are going to study about continuous tense. So, have you read these sentences written on the board? Okay, I'll read for you. First is Ashmita is watching television. Okay, first one is Ashmita is watching television. I am teaching you. Then third is my sister was sleeping when I was studying. Then number 4 is my father will be attending his meeting at 5 p.m. tomorrow. Okay? So इन सेंटेंसेस के अंदर आपने क्या सिमिलैरिटी देखी, क्या चीज़ ऐसी है जो इनके अंदर आपको सेम लगी? ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन आई टोल्ड यू अर्लियर. सो दिस इज योर सब्जेक्ट and this is your object and this all is your verb. Okay, in this is your helping verb and this is your main verb. So yes, tell me about it कि इसके अंदर आपको क्या सिमिलैरिटी लगी. What part of speech is similar in these sentences? Okay, so okay, I'll tell you about it. Yes, shall we start? Okay, then you can see here is watching. Okay, or if we come to this point only, this one watching, and in second sentence also here is teaching. So and in the next sentence my sister was sleeping, and when I was studying. And here my father will be attending. Okay, so the words that are same here are watching, means in a same pattern, watching, teaching, sleeping, studying and attending. Okay, and और इसमें सिमिलर यदि हम थोड़ा सा और इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर और क्या सिमिलर है. ठीक है, इसके अंदर जो मेन चीज, जो मेन राइम या मेन थिंग जो इसको सिमिलर बनाती है, दैट इज योर ing form. That is your ing form. Okay, तो बी के अंदर आप देखेंगे वॉचिंग, टीचिंग, स्लीपिंग, स्टडीइंग, अटेंडिंग, सब में आपका क्या यूज हुआ है? ing फॉर्म यूज हुआ है. ठीक है, इट मीन्स कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपके एक ही तरह के सेंटेंसेस हैं, एक ही कैटेगरी से ये रिलेट हैं. ओके, सो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है और किससे रिलेट करता है. ओके, सो अब सेकेंड थिंग एक और चीज़ हम देखेंगे. फर्स्ट हमने देखा कि जो हमारा मेन वर्ब है उसके पीछे इंग लगा हुआ है, मीन्स आपका जो मेन वर्ब है वो आपका इस फॉर्मेशन से बना है V1 ing से. ठीक है, दूसरी चीज जो हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब को. सभी सेंटेंसेस में यू कैन सी हेल्पिंग वर्ब इज हियर. दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब. I mark it with the blue chalk stick. Okay, was, this is also a helping verb, and then will be, and here also was. Okay, so these are is, am, was, will be. Okay, you already knew that these are the helping verbs
And which form of helping verb they are? Yes, these are be forms. These are be forms. It means इन sentences के अंदर जो similarity है वो क्या है? इनके अंदर similarity है कि helping verb में आपके पास be forms हैं और main verb में आपके पास V1 ing form है. ठीक है, तो समझ में आया? Next, okay. Next we move. So I'm going to clean it here. So you can see this is V forms and VING, V plus ing form. Okay. Now see, I told you that in every tense we have three type of tenses. What? Present, past and future. Okay, so here also, as you know that in B forms also we have three types of these helping verbs. Present, in present we use is, am, are. In past we use was and were, and in future we use will be and shall be. It means continuous tense के अंदर हमने यहाँ पर तीनों sentences, three types of tense we have written here. Okay, so आप जल्दी से एक बार इसको पढ़िए और डिसाइड कीजिए कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप से रिलेट करता है. ओके, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है. आप वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे और एक बार चेक करेंगे कि कौन सा इसमें कौन सा सेंटेंस किस टेंस से रिलेट करता है. ओके, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर. उसके बाद आप मुझे फिर से सुनेंगे. ओके, यस, यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड. सो इज. सो जब भी हमें किसी टेंस को पहचानना होता है तो हम मेन वहाँ पे किस चीज़ को देखते हैं? वहाँ पर हम वर्ब को देखते हैं. बिकॉज ये पहले भी आपको बताया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा सेम रहता है. ओनली चेंज इज in helping, in verb. Okay, and mainly in the helping verb. So आप यहाँ देखेंगे is as I told you. So this is your present continuous. Okay, this is your present continuous, and because it is was and was we use in the past continuous, and this is will be. So यहाँ से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि will be we use in the future indefinite continuous. Okay, so these tenses are present continuous, past continuous and future continuous. ठीक है, अब इसको हमने यूज कैसे किया है हम इसे देखते हैं. Yes, स्मिता इज वॉचिंग टेलीविजन. ओके, यहाँ पर हम एक और वर्ड ऐड कर सकते हैं. स्मिता इज वॉचिंग टेलीविजन नाउ. इट मीन्स इज आपने कहाँ यूज किया, या इज V1 ing या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपने किस कंडीशन पर यूज किया? जब आप उसी समय जब आप बोल रहे हैं उसी समय वो घटना घटित हो रही है. ओके, अब अश्मिता टेलीविज़न देख रही है. उसी समय आप बता रहे हैं कि अश्मिता इज वॉचिंग टेलीविज़न नाउ. अब देख रही है. इट मीन्स कंटिन्यूअस टेंस हमें क्या बताता है? कंटिन्यूअस टेंस हमें इनकम्प्लीट एक्शन के बारे में बताता है कि वो एक्शन शुरू तो हो चुका है बट इट इज गोइंग ऑन. वो भी इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है. ओके, सो अश्मिता इज वॉचिंग टेलीविजन नाउ. सो इट मीन्स दिस इज योर प्रेजेंट टेंस और एट प्रेजेंट टाइम she is watching television. Okay, then we come to the second. I'm teaching you. Yes, I'm teaching you now. Yes, so what type of tense
it is? It is present continuous tense because I am teaching you, I am speaking. So here I am teaching you, so the sentence is present continuous tense and it is related with the present time. ये present time से है क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है? So ये आपका है present continuous tense. Then we come to the next one. My sister was sleeping when I was studying. अब इसमें two actions are given. Okay. अब two actions है. पहले आपको बताया कि past and future. Past and future. Past and future do not exist. Okay. Only they are in our minds. Only they are in our future is in our planning, okay, in our thinking, in our imagination, and past is in our memory. Okay. So यहाँ पर वो एक past moment की बात कर रहा है. ये इस sentence में हम एक past moment की बात कर रहे हैं. और कौन से moment की? जब, क्योंकि time reference was given here. क्या इसने बताया है कि मेरी बहन सो रही थी जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है? तो इसमें आपका टाइम रेफरेंस क्या है? जब मैं पढ़ रहा था मीन्स टू एक्शंस आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली. तो एक्शंस एक साथ यहाँ पर हो रहे हैं और दोनों ही पास्ट में हो रहे हैं, ठीक है? सो वॉज आया और ये किसी भी दिन की हो सकती है, जिस भी टाइम की ये बात कर रहा है. और ये किस टाइम की बात कर रहा है? कि जब वो पढ़ रहा था, ठीक है, तब उसकी बहन his sister was sleeping, तब वो सो रही थी, ठीक है? So this relates with the past tense, past continuous tense. Okay. Then अब past most generally हम past और future में टाइम रेफरेंस देते हैं. टाइम से हम बताते हैं कि उसका टाइम रेफरेंस बताना ज़रूरी होता है, ठीक है? या फिर कोई भी इंसिडेंट है उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं, तब हमें, क्योंकि स्टार्टिंग ही हमने पास्ट से की है और एक इंसिडेंट को हम बता रहे हैं, तो वहाँ पर हम बार बार में हमें टाइम रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि हम पास्ट में ही लिख रहे हैं. बट यहाँ पर एक जर्नल सेंटेंस है ये, सो इसीलिए हमने यहाँ पे टाइम रेफरेंस दिया व्हेन आई वाज स्टडीइंग, कि जब मैं स्टडी कर रहा था तब मेरी बहन सो रही थी. ओके, सो अंडरस्टूड. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन. माय फादर विल बी अटेंडिंग हिज मीटिंग एट 5 PM टुमारो. अब हम क्या यहाँ पे हमारा ध्यान जाना चाहिए कि वो किस टाइम की बात कर रहा है, ठीक है? किस टाइम की बात इस सेंटेंस के अंदर हो रही है. अब यहाँ पर बोला है 5 PM टुमारो. टुमारो मीन्स इन फ्यूचर. ओके, सो it is his imagination कि कल 5 बजे मेरे फादर अपनी मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे. ओके, कि मेरे फादर जो हैं वो अपनी मीटिंग में होंगे. सो मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे. सो ये इट्स इन इमेजिनेशन, वो कल्पना की जा रही है कि 5 बजे मेरे फादर बिजी होंगे. क्यों? क्योंकि वो अपनी मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे. विल बी अटेंडिंग his meeting at 5 PM tomorrow. Okay, so tomorrow जब हमने लगा दिया, it means it relates with the future continuous tense. Okay, so I hope you understand it. Now we come to the next point. Through these 4 sentences, I have taught you almost all the things about the continuous tense. Okay, और बार बार ये जो टेंस है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी कन्वर्सेशन में भी, तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है? इस टेंस को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. सपोज आपकी मम्मी आपसे पूछती हैं बच्चे व्हाट आर यू डूइंग, देन व्हाट विल बी योर आंसर. जो भी आप काम कर रहे हैं, सपोज यू आर प्लेइंग, देन आप बोलेंगे
ममा आई एम प्लेइंग। ओके, इट मीन्स आप अपने प्रेजेंट टाइम के एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। सो कंटिन्यूअस टेंस क्या करता है? कंटिन्यूअस टेंस, चलिए सिंपल लिखते हैं, टेल्स अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट एक्शन। प्रेजेंट मोमेंट में जो एक्शन होता है उसके बारे में हमें बताते हैं। और वी कैन से एट द टाइम ऑफ एक्शन, चलिए यहाँ लिखते हैं, एक्शन हैपनिंग एट द time of action happening at the time of speaking, okay, and it may be in the past and the future, just be घटना की हम बात कर रहे हैं, okay, or we can say time of happening an action, time of happening an action, okay, in any moment of time, ठीक है। टाइम के किसी भी मोमेंट में जो भी एक्शन हो रहा है उसके टाइम को हम यहाँ पर बताते हैं। और ये मोमेंट ऑफ टाइम मीन्स क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की। और एक और इम्पोर्टेंट चीज की भी टेल्स अस अबाउट इनकम्प्लीट एक्शन। इनकम्प्लीट एक्शन, यहाँ पर हम इनकम्प्लीट एक्शन के बारे में बताते हैं। और द एक्शन दैट इज, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है ये, गोइंग ऑन, उस एक्शन के बारे में बताते हैं जो कि चल रहा है या चल रहा था, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कंटिन्यूअस टेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। इट इज अ वेरी सिंपल टेंस and we use it whole day। हमें खुद को भी नहीं पता होता है बट हम इस टेंस को पूरा दिन जो है वो बोलते हैं, ठीक है। So I hope you understand it. So in this video we come to know about the present continuous tense, okay, present continuous tense, then second is the past continuous tense, then third is your future continuous tense, ठीक है। इनके बारे में हमने जाना and you know the main things, or we can say the formation। एक कॉमन फॉर्मेशन की हम बात करें कि कंटिन्यूअस टेंस की कॉमन फॉर्मेशन क्या बनेगी, तो वो आपकी बनेगी सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे आपका होगा बी फॉर्म्स, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म, देन योर V1 ING फॉर्म एंड देन योर ऑब्जेक्ट, ओके। और इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे, V1 ING भी सेम रहेगा बिकॉज कंटिन्यूअस है तो V1 ING फॉर्म आता है, पर चेंज जो होगा हर टेंस में वो आपका बी फॉर्म चेंज होगा। इसमें आपको बताया, इसमें हमारा इज, एम, आर, और पास्ट में हमारा वॉज, वर, एंड फ्यूचर में हमारा विल बी और शैल बी, ओके। यहाँ आपको हम बता चुके हैं इज सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ आता है। नोट इट डाउन बच्चा, इसको नोट इट डाउन करते रहें। देन सिंगुलर के साथ, आर आपका आता है प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन।
एंड एम आपका आता है ओनली आई के साथ, ठीक है। Here was were, यहाँ पर भी was with the singular noun and pronoun, were with the plural noun and pronoun, and will be and shall be used with the first person pronoun. It means I and we के साथ आप shall लगाएंगे, shall यूज करेंगे, और बाकी सब के साथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ और जितने भी नाउन्स हैं सबके साथ आप विल बी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक जर्नल फॉर्मेशन है और ये आपका स्पेसिफिकली मैंने आपको बता दिया है कि किस टेंस के अंदर आप कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज, सपोज हम इसमें नेगेटिव टेंस, इस हमारे सेंटेंस को हम नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। देन हाउ डू वी डू इट? सपोज आई हैव अ सेंटेंस दैट yes, the sentence is that he is flying kite. Okay, he is flying kite. It's a journal form, ठीक है। Present continuous sentence tense. Okay, so he is flying a kite. ये आपका है एक सिंपल सेंटेंस, सिंपल, और हम इसको कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है ये। इफ वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव वन, यदि हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन व्हाट वी हैव टू डू, यस, नॉट नेवर कम्स अलोन, नॉट कभी भी अकेले नहीं आता है। सो with the helping verb, it always comes with the helping verb, और वो helping verb जो आपकी यूज हुई है आपके सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। और ये भी चीज़ रिपीट हो जाती है बार बार हर स्लाइड में कि केवल टू आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट ऐसे टेंसेस हैं जिसकी सिंपल सेंटेंस के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। अदरवाइज जितने भी आपके 10 टेंसेस बच जाते हैं उन सब में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है। तो हमें अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब उसमें हम यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम इज़ लगाते हैं, तो इज़ आपका इज़ नॉट बन जाएगा, ही इज़ नॉट फ्लाइंग काइट। ओके, अब आपको इसका चलिए राइटिंग इट फुल, ठीक है। एंड इफ वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ क्वेश्चन, यदि मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, देन व्हाट डू आई डू, यस, क्या करना है, सिंपली आप हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से देखिए, सिंपली हेल्पिंग वर्ब को आप उठाएंगे और यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर हम इसको रख देंगे। देन योर सेंटेंस विल बी इज ही फ्लाइंग काइट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्लेस क्वेश्चन मार्क। ओके, सो इज ही फ्लाइंग काइट, क्या किया हमने, ही इज आपका यहाँ सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हमने उस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से उठाया है और यहाँ रख दिया है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, इज ही इज फ्लाइंग काइट, इस इज को 2 टाइम्स यूज कर देते हैं, बट नो, हमें सिंपली इसको यहाँ से लेना है और इसको फर्स्ट प्लेस पर रख देना है। इट मीन्स ये यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा इज ही फ्लाइंग काइट, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, now if we want to convert this sentence into negative interrogative or negative question हम बनाना चाहते हैं, बट हम चाहते हैं कि वो नेगेटिव में बने, तब हम क्या करेंगे, तब हमें यस, कुछ बच्चे कहेंगे ठीक है जी, इसके साथ हम नोट लगा देते हैं, बट यहाँ पर नहीं आता, वो नोट आपका कहाँ आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, इज ही नॉट फ्लाइंग काइट।
इज ही नॉट फ्लाइंग काइट, इज नॉट ही नहीं आएगा, इज ही नॉट फ्लाइंग काइट। ओके, अंडरस्टूड। इसका हमें ध्यान रखना है। बाकी जो टेंसेस हैं उनके अंदर भी यदि हम नॉट लगाना चाहते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, क्वेश्चन सेंटेंस में, तो वो हमेशा आपका सब्जेक्ट के बाद आता है, सब्जेक्ट से पहले नहीं आता। और क्वेश्चन सेंटेंसेस में हमें ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएं, ज़रूर लगाएं, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग and will learn it by practicing. So try to do your book exercise yourself. Okay, now I am going to write some sentences for you, only 5 sentences. So what you have to do, you just change that sentences into negative and question. Okay, yes, देखिए ही, चलिए फर्स्ट आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको फिल करेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, घबराना नहीं है, ओनली 3 और 5 सेंटेंसेस, ठीक है। सो इसको आप हेल्पिंग वर्ब फिल करेंगे, ठीक है। और दिस उसका नेगेटिव और क्वेश्चन आप अपने आप बनाएंगे। ही डैश wait a minute, yes, he dash ice cream yesterday, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है आपकी eat। देन अब इसको सिंपल सेंटेंस में भी फिल करना है, देन इसका नेगेटिव और क्वेश्चन भी आपको बनाना है, ठीक है। देन सेकेंड हम करते हैं कि okay, yesterday, yes, she dash apple now, okay, eat। Then yes, the postman dash letters tomorrow morning, ठीक है। और यहाँ पर आपका आएगा डिलीवरी, ओके। सो सॉरी, डिलीवर। अब यहाँ पर ठीक है, डिलीवर। तो क्या करना है, इनको आप फिल करें और फिर इनका नेगेटिव और क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। सो क्या बनाना है, आपको कन्वर्ट करना है इसको नेगेटिव में और क्वेश्चन में, और तीसरा नेगेटिव क्वेश्चन में, ठीक है। सो दिस यू हैव टू डू इट। सो हैव अ लुक ऑन इट। Yes, I hope you understand this lesson. Thank you, students.